Can I hear Kamal is there? Kamal? Kamal? Harpreet, you can unmute Patri madam also. Okay. Sir, which name it is? She will come. She is already unmuted. Yes. She's madam. Thank you, madam. Welcome, Swarnamala madam, Patri ji. And राम मैडम, प्रणाम प्रणाम। आपका वेलकम है। चंडीगढ़ के जितने भी पिरामिड मास्टर्स हैं और जितने आज हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, आप सब वेलकम करते हैं और आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं कि बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए हैं और बहुत बहुत जी आया को आपको, और आप आपसे इजाजत मांगेंगे कि मुखा मुखी प्रोग्राम के बारे में आप इजाजत दें। ओके। शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप कुछ अपने शब्द हमें कहें जिससे हमें मोटिवेशन हो। यहाँ बहुत खुशी हुई आप इसमें आके, चंडीगढ़ के ग्रुप में आके। बहुत दिन के, बहुत सालों के पहले भी मैं चंडीगढ़ एक बार गई थी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। तो अब फिर अब आपको शुरू करें? नहीं मैम, just we want you to connect to brother Mukesh. He just had a session and Patri sir were not there, but he is from Bahrain and he has taken a wonderful class and everyone were in bliss. Mukesh ji, ma'am hai, Patri ma'am, just I will add you also. Please unmute yourself, Mukesh ji. Yes, yes. Namaste. Namaste, ma'am. उनका वीडियो दिख रहा नहीं। Ma'am, I can add one spotlight. I will add him. Now he will. You will see him. Mukeshi. Yes. Pranams. Pranams. वीडियो दिख रहा नहीं, पता नहीं क्यों। Sai Kumar sir, can you help? with madam. I am in Hyderabad. Madam is. Yeah. I can do. I can see now. Yes. I can see everybody. Namaste. Namaste, namaste. Ma'am, Dr. Mukesh is from Bahrain, and today he spoke on harmonic meditation as a tool to move into oneness. Where he spoke, he did light language, he did mudras, and he is a favorite student, I will say, of Ray Chandran sir, and he is next who is taking care after him and taking all the people around the world to next level. Wow. Holy Mukesh. Very great. Mukeshi? Yes, it was really a divine blessing to be here on this platform, and a great divine initiative taken by Brahmarshi Patriji and all the supporting staff, especially the divine work that Brother Harpreet, Arun Kamboj sir, Navneet sister, and all the other supporting staff who are behind holding these sessions during these difficulties is something very noble. And I truly honor and my humble pranams to each and everyone and all the masters who are present here, because I think it's a collective, what do you call it? You can call it as a collective effort, because each and every person is unique and each and every person is a divine blessing. And we all learn everything from each one of us. We all are incomplete pieces of a big puzzle called creation. And it's a great blessing to be here and share whatever small wisdom and knowledge that I am having. I'm still learning and I still hope to learn more and share more. And my humble pranams to all. Mukesh, we'll start with you. You can ask one question to Patri ma'am. Okay. Hope I can answer you. Ma'am, we are divine blessings we have from you, ma'am. Okay. Question. Okay. How can we keep this higher frequency of happiness within us always? Always you have to be in that frequency, means you have to meditate a lot.
spend your man hours of meditation so that you can be in bliss all the time. But it is not possible because you are in this earth, on this earth. So you cannot work in both ways, in that frequency and this frequency also. So you when you have to work in this frequency on this earth plan, then you have to come down. So always, not always possible, but sometimes you can go. When you meditate, you go. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. And what I truly believe is that meditation is not only when we close our eyes. Meditation is also when we keep our eyes open. Yes. When we Yes. focus on anything with full awareness, with full passion, with full of our heart, with full vision. I think that is also true meditation. Yes, agree. Our work is meditation. Our dance is meditation. Everything is meditation. If you concentrate on that, in whatever way, when I'm cooking, it is meditation. Because I'm concentrating on that. Otherwise, the taste will not come. When you make a singing balls, the music is a meditation. Otherwise, nobody can sit in meditation. It is like that. Thank you so much. Now I will ask Bhupinder Katoch ma'am to unmute yourself and ask question to Patri ma'am. नमस्कार पत्री मैम। नमस्कार। और सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भूपिंदर कटोच है। जैसा कि डॉक्टर मुकेश ने बताया था कि उन्होंने मेरी ऑरा में पत्री सर को पहली बार देखा था, वो मैं ही हूँ। और हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि आप हमारी लाइफ में हैं। और मेरे को काफ़ी साल हो गए करते हुए। मिसेस आशु सोडी ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था पहली बार, और उसके बाद मैं रेगुलर मेडिटेशन कर रही हूँ और काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। और उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सब अच्छा ही अच्छा हुआ है। आप जैसे मास्टर्स, जैसे अभी मुकेश हैं, हरप्रीत हैं, कबूर सर हैं, और इतने ज़्यादा नाम है कि अभी लूँगी तो बहुत देर हो जाएगी। सो सब मेरी लाइफ में आए, सभी ने मेरे को टाइम टू टाइम गाइड किया और सब किया। और मेरे को सबसे पहले तो वो 4 किंगडम दिखाई दिए थे, जो मेरे को समझ भी नहीं आया था उस टाइम कि क्या होता है। चलो धीरे धीरे बाद में पता चला मुझे। और एक दिन 8 मार्च की बात है, रात को मैं सो भी नहीं रही थी, मैं जग भी नहीं रही थी, लेकिन दाढ़ी वाले बाबा जी, तो हम पत्री सर को ही बोलते हैं वैसे, उन्होंने आके कोई एनर्जी मेरे में ट्रांसमिट की। उसके बाद रे सर ने मतलब उसको बताया कि मेरा कुछ, उन्होंने उसको कंफर्म किया। तो वो मेरे सर थे, पत्री सर, तभी शायद मुकेश को दिखाई दिए होंगे। उस दिन से मेरे को अपनी लाइफ में कभी भी चिंता नहीं लगी। मैंने कहा जब वो मेरे साथ हैं तो फिर मैं चिंता क्यों करूं। मैं थोड़ा शाई हूँ, आज पहली बार बोल रही हूँ, सो प्लीज वो नहीं करना। हाँ, एक बात मेरे को आपसे क्वेश्चन के लिए बोला, तो वो ये पूछना है कि जब भी मैं पत्री सर की फ्लूट सुनती हूँ, जैसे कि फर्स्ट टाइम मैंने लुधियाना में सुनी, और वो शायद 1 घंटा कुछ मिनट्स का प्रोग्राम था, लेकिन वो पहले तो मेरे को सुनती है 1 मिनट, उसके बाद जब वो लास्ट में कहते हैं कि इतने सेकंड्स बच गए है ना अपनी आंखें खोलने के लिए, तो मैं वापस आती हूँ। तो इतना टाइम में कहाँ होती हूँ, मैंने कभी भी उनकी फ्लूट पूरी अभी तक नहीं सुनी। तो प्लीज आप मुझे बताइए, आप उनके साथ रहते हो तो आप ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हो। आप सुनते होंगे, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में चले गया होगा। आप डीप मेडिटेशन में चले गए, तो जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो कॉन्शियस नहीं होंगे, तो जो भी फ्लूट है ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। ओके। कॉन्शियस माइंड तो ध्यान करती है,
हाँ जी। So yeah, you are half conscious and half subconscious. हाँ जी। तो ये दो इसमें रह के आपको सुनाई नहीं देता क्योंकि you are out of your body. ओके, ठीक है। That तो is ये why क्वेश्चन maybe. मेरा, हाँ जी, हाँ बोलो। तो यही सवाल मेरे मन में था। चलो आपने आंसर कर दिया, थैंक यू सो मच। प्रणाम आपको बहुत। नेक्स्ट नेक्स्ट आई विल आस्क विभा जी की आईडी पे सीरत को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए। Hello everyone. Hello one and all present. Namaskar Patri ma'am. I'm Seereth. Namaste. I'm working as an associate process manager in eClerks in Pune, Okay. and I have been in meditation since 5 years, and I've been doing meditation since 5 years. And during my meditation journey, I've gained a lot of experiences. I've seen my various past lives. I just want to share one of my experience that I've seen during my meditation. So I was a Rishi sitting in the same posture, folded hands, folded legs. And at that point in time, earlier we used to have gurukuls and stuff. So my guru is, the guru that I have at that point in time is my spirit guide now, named Sri Ramdev Sannyasin Prabalji. He has a strong beard and stuff. So what's so, like, if I feel I'm very tense and stuff, I simply sit in meditation. I just ask questions that, sir, please help me out, because I usually call him Babaji, because at that point in time he was my guru. So this was one of my experience that I've seen during my meditation journey, and I have gained a lot of knowledge during this process of being in meditation. And so on behalf of Pyramid Spiritual Society movement, I would like to congratulate each one of us, that we are so much privileged that we all are part of this beautiful Dhyan Mahayagna. And I really congratulate all of us, because this beautiful platform will help us to enhance our knowledge during our meditation journey. And the question that I have, if you can see that there's a heart shape, I just want to ask this, like, there's a heart shape in my, what do we call? Yeah. In my, I mean, your hair is like that. Like during my meditation, I've just seen that it's a symbol of love. Like it denotes as a symbol of love. Like this is what I. But as per Patri sir, there's no word like love. So this is my question, that what actually this this shape denotes. Yeah. Love means his version is concern, caring. That is love. Okay. Love is an abstract thing. You cannot see love, but caring you can see, concern you can see. Like that. His version is like that. Love is, you cannot see love. You can feel it, but you cannot see it. But concern you will see it. So that is what love means for him. So that's why he says there is no love. He says caring is there, concern is there. Both are there, but not love. Okay. Thank love, you. Once you will have love, once you don't have love, it will change its shapes. But concern will not change. Always when you have concern towards somebody, it will have always. That's what. Thank you. So basically this denotes love, like the shape that I had. Yeah, of course. If you feel it, it is love, it is there. For you, it is there. Yeah. Okay. It differs from person to person. Exactly, yes. Robin sister, would you like to ask question? Good to see you from USA. If you don't mind, you can say hi or ask question to Patri ma'am. Robin sister, I can see divine sunrise.
Robin sister, if you want to ask question. Meanwhile, I will ask Neena ji. Where is Neena ji from Chandigarh? I'll ask Navneet sister. You have Navneet with you. Your colleague was there along with you, na? Neetu was there, Navneet, with you? Neetu? Namaste, Patri ma'am. Namaste, namaste. I haven't met you, but I have heard so much about you from Jassi ma'am, from Harpreet, from Rachna Di. Really gratitude to you for being in our life, you and Patri ji both. She's my teacher. I think Harpreet wants her to ask a question. Patri ma'am. Okay. Hello, namaste ma'am. Namaste, namaste. मेरे को ना जैसे अभी मुकेश सर की क्लास ली और उसके बाद अचानक से ना आई फील कि मेरा जो हेड है बहुत हैवी हो रहा है, मतलब लिटरली मेरी बॉडी शिवरिंग कर रही थी और हेड बहुत हैवी हो रहा था और आई फील, और सडनली मैं गई थी, मैंने वॉमिट किया, देन आई फील काम, बट उसके बाद भी अभी तक मेरा हेड इतना हैवी हो रहा है मैम, आप बताइए वो मुझे. Yeah, this experience comes to me also. When you listen to some divine music and when you go into deep meditation and all, the energy will store over here. And when you know how to distribute that energy inside the body all over, then the heaviness will not be there. Okay. You should know how to distribute your energy. Okay. For whole body, on the whole system. Then the heaviness will not be there. That is why it is heavy, because the energy is dumping over here. Okay, मेरी जो लेग है, हाँ जी बोलिए. हाँ बोलिए. हाँ, मेरी जो लेग है अभी तक शिवरिंग कर रही है और हेड बिल्कुल हैवी, लाइक होता है ना कि आप मतलब 10-15 दिन से बीमार हो और सडनली आप चलने लग रहे हो, उसके बाद जो फीलिंग होती है सेम एज इट इज अभी मेरे साथ हो रही है. अभी कितना मिनट हो गया आपको ऐसा लगने से, मतलब अभी कितना टाइम हुआ? हाँ? आधा घंटे से बहुत ज्यादा हो गया जब सर की क्लास थी, मींस 50 मिनट अराउंड. ओके. जब से तब बहुत था, अभी थोड़ा कम हो गया ना, थोड़ा करके. आफ्टर वॉमिटिंग थोड़ा सा कम. हाँ, वैसा थोड़ा कम हो जाएगा. हाँ जी. You should know how to take the energy and distribute in your body. Otherwise, it will be here only. Okay. Because you have not done that. That's why you got, vomitings. Okay. The energy, the highest energy, that is meditation energy. Even I used to have, when I went to Shirdi Sai Baba, he was all the शिष्यगण है ना, वो सब लोग ओमकार को चैंट कर रहे थे. 3 बार करते हैं सुबह में 4:30 बजे. तो मैंने गई उधर, जाके बैठ गई. I sat there. Then they were saying ओम ओम बोल के. इतने लोगों की जो ओमकार है ना, मेरा ऐसा फट जाएगा, इतना हैवी हो गया था. बहुत हैवी होता है. हाँ, थोड़ी देर के बाद मैंने उतर के ध्यान करके धीरे धीरे करके वो हैवीनेस गया. ऐसा होता है. थैंक यू मैम. थैंक यू. Sarabjit ji, please unmute yourself and ask questions to Patri ma'am. Sharma ji. Sarabjit Singh. Can someone live in meditation stage and for 24 hours? क्या कोई व्यक्ति 24 घंटे ध्यान की अवस्था में रह सकता है? ऐसा पॉसिबल है? 24 hours नहीं, 7 days. One person sat in meditation
before everybody, we were doing meditation saptaha in Tirupati. One person sat in a chair, no food, no something, bathroom ko jana, ye jana, wo jana, hilna nahi. 7 days he sat there for meditation. You are asking for 24 hours. I used to sit for 24 hours. It is very easy if you determine. क्योंकि सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सॉरी मैंने आपको विश नहीं किया, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्स मैंने आपका फेस दिखाई नहीं दे रहा। ओ पगड़ी वीर जी तोड़ी सिर्फ आ रही है। हाँ आई नो, पगड़ी ही दिखा रही। सरबजीत जी। हाँ जी, एक बार आना दोबारा। हाँ बोलिए। बोलोगे तो आ जाओगे। जो मन है, मन हमेशा थोड़ा सा मूव कीजिए, हिले इस। हाँ अब ठीक है, अब आ रहे हैं। हाँ। फोन नेट ना जाओ, तुसी थोड़ा जा पीछे रहो बस, मोड़ बढ़िया लग रहा है। जो मन है वो हर समय बदलता रहता है, उसकी अवस्था, मतलब कभी मन बहुत हायर स्पिरिट में हो जाता है, कभी बहुत डाउन हो जाता है, कभी डिप्रेसिव स्टेट में। तो ये एक समावस्था में रहे, उसके लिए क्या करूं? मतलब ऐसे ही रहना मन को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कैसा पॉसिबल होता है? हाँ, एक को देखे तो अच्छा लगता है, एक के देखे तो अच्छा नहीं लगता। अभी कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। तो मन को हर जगह, हर वो भटकना ही उन मन का नेचुरल ये है, स्ट्रक्चर है उसका। उसको एक जैसा बनाना असंभव है। जब ध्यान करके 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 बहुत ऊपर गए तो तब होगा शायद, क्योंकि मैंने फील नहीं किया। कभी दुख होता है किसी को देखे तो, कभी भी फीलिंग्स ना डाउन हो जाते हैं, कभी अप हो जाते हैं। तो इट इज नॉट सो इजी। Okay, Neetu ji, next you can ask your question. You have raised your hand. हेलो एवरीवन, नमस्ते मैम। सबसे पहले चंडीगढ़ टीम को बहुत बहुत बधाई, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए रखा। और मुकेश सर, जैसी मैंने आपकी क्लास लगाई, इट्स रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को कि मैं चाहती थी मैं सबके साथ शेयर करूं। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को, क्योंकि मैं लाइट लैंग्वेज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, तो जैसे आज मैं आपकी लाइट लैंग्वेज के साथ कनेक्शन बना, तो मैंने अपनी बहुत सारी बॉडीज देखी कि एक ही टाइम पे मेरी इतनी सारी बॉडीज आउट ऑफ, मतलब मेरी बॉडी में से निकल रही हैं। तो एक बॉडी मेरी जा रही है जो पतरी सर के आगे बैठी है, सर फ्लूट बजा रहे हैं और मैं लेटी हुई हूँ, और मेरे जैसे ऊपर सर कोई वर्क कर रहे हैं मेरी बॉडी के ऊपर। एक फिर मुझे बहुत बड़े बुद्धा नजर आए जो गोल्डन बुद्धा थे, गोल्डन कलर के, जिसमें से इतनी जबरदस्त गोल्डन रेज आ रही थी, और उस वहां भी मैं लेटी हुई हूँ और वहां भी मेरे ऊपर वर्क हो रहा है। तो एक बॉडी सडनली मेरी इतनी जबरदस्त समुद्र के नीचे चली गई, तो वहां एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल भी देखा मैंने। तो जैसे ही क्रोकोडाइल का मुंह ओपन हुआ तो मैं क्रोकोडाइल के भीतर चली गई। तो उसके भीतर जब मैं गई तो मैंने बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे हाथ पैर भी मारे। सबसे पहले तो मुझे डर लगा, तो मैंने बोला कि मुझे डरना नहीं है, मुझे देखना है इसके भीतर क्या है। लेकिन उसके भीतर इतनी अच्छी एक लाइफ थी। जब मैंने उसको देखा, उसके साथ जब जैसे मेरा फियर डाउन हुआ, तो इमीडिएटली उसने मुझे इतने सारे कलर्स, इतनी सारी चीजें दिखानी शुरू की। देन सडनली फिर मैं फिर ऊपर चली गई, इतने स्टार बींग्स के पास, गैलेक्टिक के ओशन के बीच में, जहाँ इतने सारे ब्लू एवियंस थे, गोल्डन एवियंस थे, उनके साथ मेरा कनेक्शन बन गया। वहां एक सर्कल के अंदर मैं बैठ गई जहां पे इतने सारे गोल्डन एवियंस थे। उन्होंने मेरे ऊपर सर्जरी शुरू कर दी। मुझे नहीं पता कि इतनी सारी सर्जरी मेरी हुई, और उसके बाद से मेरे पैर जमीन पे ही नहीं लग रहे। मैं उड़ती जा रही हूँ, और मैंने 2 लीटर पानी भी पी लिया, और उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि मैं पानी पीती जाऊं,
और मुझे फील ही नहीं हो रहा अपना फेस। मैंने जाके मिरर में अपना फेस देखा, मुझे अपना फेस फील नहीं हो रहा। देन आपने बार बार हमें कहा कि आप उसको देखिए कि गोल्डन पिरामिड आपके ऊपर है। तो वो गोल्डन पिरामिड मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने पता नहीं कितने सारे गोल्डन पिरामिड है, मुझे धरती पे कोई घर ही नजर नहीं आ रहा कि वो सारे गोल्डन पिरामिड्स बन रहे हैं और हार्ट ही हार्ट। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब इतना ज्यादा लाइट फील हो रहा है, लग रहा है कि वाकई में अब पूरी शिफ्ट हो चुकी है। जो मुझे अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इतनी जबरदस्त शिफ्ट, और मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे अंदर से आवाज, मैं बोलना कुछ चाहती हूँ लेकिन मेरे अंदर से शब्द ही नहीं आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इतनी ज्यादा हैप्पी हूँ आज की क्लास के लिए, इतना जबरदस्त कि मेरे घर में मास्टर्स ही मास्टर्स बैठे हैं। लॉर्ड मेल्किसेडेक, मदर क्वानियन, इतने सारे मास्टर्स, और मैं, मेरे हाथ अभी भी शिवर कर रहे हैं, मेरी बॉडी शिवर कर रही है, और मैं चाहती हूँ इस ब्लिस में से बाहर आना। थैंक यू सो मच sir, thank you, really thank you so much. I'll just share a word, Harpreet ji. Actually, what you experienced. Patri ma'am, Patri ji. Yeah, please. Shall I speak, Harpreet ji? Yeah, sure, please. Yeah, actually what Sister Neetu has just shared is the experience of your soul is present in many different dimensions. So in today's existence, or in this plane of meditation that we had today, you are able to see where all your soul is existing, even when you are in your physical self here. So you are not only present in your body, this physical body, you're also present in many, many dimensions. And it is this knowledge that you have seen. And it is nothing, different. It is something which is a natural part of yourself. Because you opened your heart, you could experience. Now, one more word I would like to share is that many people who are with us today, they might not be feeling anything. They might not be seeing anything. Now they will be depressed. See, now Sister Neetu has got so much experience. We didn't feel anything. But that doesn't mean none of you had not received the experience. It is in a different state of awareness. Like you are in a different state of vibration. And what energies are necessary for your being has just received into your space. So everyone receives exactly in the amount that it is required to. So in this higher awareness state, you have received the bliss, and this bliss you can keep it within yourself, and it will be always there. Definitely. And regarding Sister Neetu, sometime back she was complaining of a heavy-headedness. Now, regarding heavy-headedness, I have been into meditation from many hours together, and I usually used to have migraines, but I never knew how to balance this energy. But before 2-3 years, I heard a voice. It was the voice of Sri Mahavatar Babaji. And it was in a session when I was speaking on the phone with one of my friends. And immediately his voice appeared to me and he told me to do the Kechari Mudra, which is one of the most important mudras in Hatha Yoga. And in this one, what they do is that they actually take the tip of the tongue and touch the palate. And once you do that and you breathe, immediately all the energy in your crown is grounded to Mother Earth. So this is what I want to share with all of you who are experiencing extreme energy. But it doesn't mean you will lose the energy. It will balance the energy to the other chakras. Sure. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Thank you so much for sharing. Thank you, brother. Vijaya Palekar ji, you were asking one question. Please go ahead. को प्रणाम और डॉक्टर मुकेश नायर आपको भी प्रणाम। जो आपने अभी बताया वही सेम एक्सपीरियंस मेरा है। हेड बहुत हेवी हो गया था मेरा और कान बंद हो गए थे, जैसे कान किसी ने दबा के रखे हैं मेरे, और ट्रेम्बलिंग अभी भी होता है, वाइब्रेशन अभी भी हो रहा है। जैसे हम लोग बहुत भागते हैं तो हमारा पल्पिटेशन बढ़ता है, वैसे हो रहा है। तो बोलने के समय भी मुझे तकलीफ होती है इससे, लेकिन वो वंडरफुल एक्सपीरियंस था, इसके लिए आपको थैंक्स। और मैडम आपको पूछने का था एक सवाल कि मुझे हमेशा मेडिटेशन में नहीं, ऐसे ही काला नाग दिखाई देता है, छोटा 1 फुट का ऐसा। मतलब मेडिटेशन में कुछ नहीं होता है और डेली एक्सपीरियंस में भी कहीं पे, लेकिन वो है ऐसे कहीं पे लगता है।
वो ऐसे क्यों होता है? लास्ट फ्यू डेज से हो रहा है वैसा। बहुत काला नाग, ऐसा छोटा सा 1 फीट का ऐसा है, ऐसे लगता है। पता नहीं ये क्यों हो रहा है ऐसे। होता है, बहुत कुछ होता है। कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। मतलब ऐसा आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो नहीं होगा, फिजिकली नहीं होगा वो। राइट, नहीं लेकिन होता। फिर भी नहीं होता है, लेकिन आपको फिजिकली लग रहा है वहां पर है बोल के। हाँ हाँ, तो है नहीं। वो मतलब कहीं पे मुझे डर नहीं लगता है इससे कि वो मुझे काटे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसका होना मुझे लगता है कि वो है, कहीं पे है ऐसे। मेडिटेशन में आँख बंद करके कंसंट्रेट करूँ, सांसों को ऑब्जर्व करूँ तो कुछ नहीं आता है। वो बहुत प्रेजेंट होता है मेडिटेशन। लेकिन बाद में भी घर में काम करती हूँ तो ऐसे नहीं कि वो यहाँ छुपा है वहां छुपा है, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन एट द बैक ऑफ माई माइंड कहीं पे लगता है कि वो है। तो वो ऐसे क्यों होता है ऐसे? वही आपको दिखता है लेकिन नहीं है उधर। जो नहीं दिखता है, जो नहीं है उसके बारे में सोचना ही नहीं। ओके ओके, डोंट थिंक ऑफ इट, जस्ट बी विथ योरसेल्फ। लेकिन मुझे लगा कुछ सिग्नल है क्या, वो कुछ बैड, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ना ना ना। अच्छा, ओके ओके, थैंक कुछ यू। बैलेंसेस होते हैं ना, कुछ मेमोरीज होते हैं, वो मेमोरी ऊपर आता है कभी कभी। ओके ओके, थैंक यू मैडम। Neena ji, please ask your question. Neena ji from Chandigarh. हाँ जी, प्रणाम जी, नमस्कार जी। देखिए, हमारे तो गुरु अर्जुन कंबोज जी हैं, जिन्होंने हमें मेडिटेशन से रूबरू कराया। और दैट वाज द पाथ ऑफ इनर जर्नी, सेल्फ अवेयरनेस, एनलाइटनमेंट, एंड व्हाट एल्स कैन आई से? आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। उन्होंने हमें ब्रह्मांड के ही दर्शन करा दिए, है ना। और बहुत मानसिक विपताएं थी, ऐसे दुख थे जिनसे हमें बाहर निकाला। क्योंकि आई लॉस्ट माय पेरेंट्स इन 2016 एंड आई वाज वेरी सैड एंड वेरी डिप्रेस्ड एंड इन डिप्रेशन। सो दैट इज ओनली आई केम थ्रू मेडिटेशन। और बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी जर्नी पर हूँ मैं। मैंने अपने ब्रदर को भी फिर मेडिटेशन की फील्ड में लेकर आई। उनको अर्जुन कंबोज जी ही उनके गुरु हैं, तो उसको तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। अच्छा। मेरे ब्रदर को। And now my daughter, she is 22 years old and she is also going on the same path, same journey. So this is, I give credit to Arjun Kamboj. He is our guru. I don't know anyone else. I have not been anywhere. I don't seen anyone face to face, but I have seen Mr. Arjun Kamboj, and he means something for me. He means something for all of us who are doing meditation in Chandigarh. वो अपना टाइम निकालते थे, अपना इतनी दूर से ट्रेवल करके वो सूद भवन में आते थे, है ना। और उनको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए था। वो सिर्फ ये कहते थे कि जो कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और इतनी दूर से आके मेडिटेशन सिखाते थे। और उसके बाद तो जरा लॉकडाउन के बाद पूरी रूटीन चेंज हो गई है वर्ल्ड की, तो उन्होंने हम बहुत किया है हमारे लिए, चंडीगढ़ वासियों के लिए। He is next to God for us. गुड, वेरी गुड। या किसी न किसी को एक गॉड फादर होता है, वैसे ही गॉड फादर। हाँ। पुनीत जी, काइंडली अनम्यूट। थैंक यू सर। पुनीत चावला। Hello everyone, and gratitude to all the masters. I'm in a dilemma as such. I'm a beginner, as I told Harpreet sir also. I just have gone undergoing this meditation session from last 30 days only, and also not able to do in the daytime. I just want to ask that most of the time I'm meditating while sleeping. When I'm in sleep, I'm meditating, and when I wake up, it's like I have meditated already. So I'm already having a lot of energy when I get up. So why it is like that? I feel that I have lots of energy when I wake up. So I'm into meditation when I'm in a sleep. What's that? Good. That's very good. That's very good.
some people do that. Yoga nidra hota hai. So I'm in a meditation position while sleeping in a dream. I'm meditating, ma'am. That's what I'm saying. Wow, बहुत I don't अच्छा है know. ना? हाँ, Yeah, but I'm very just a nice. beginner. I really want to do like you all masters It's are not doing, and there's so many no, experience. you are wrong, मामा. क्योंकि बिगिनर बोल के अपने आप को कम मत करो, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत किया होगा. क्या क्या मालूम, किसको मालूम. हाँ, तो किया होंगे, इसीलिए आप निद्रा में भी ध्यान कर रहे हो. इसीलिए इतना एनर्जी आ रहा है. Same thing, because you don't know your past, so you are talking like that. You are thinking like that, I mean. But you must have been doing this meditation since long lifetimes. Thank you, ma'am. Thank you. Don't search your answers in this lifetime only. There may be many lifetimes. Mm-hmm. Okay. Thank you, ma'am. Rajesh Kumar ji, you have raised your hand. Ask on mute, yes. Ajay, am I audible, sir? Yes, you are audible. Namaskar, Mukesh ji. It was a really wonderful session. I have been starting to meditate just a few months back, but today's meditation was bliss, total bliss, sir. And in addition, the mudras also, I intend to do it more regularly. And the overall music, what was being played, was very well orchestrated. And it was really a spiritual bonanza, as it was called. And amazing, sir. And so many things to say, but really very, very, very thankful to all masters for this immense effort to join so many people around here. And very much humbled, and with deep gratitude I answer. Thanks a lot. Thank you so much, everybody. Okay, I ask Arika Gupta. She wanted to ask a question. Arika Gupta? Yes, sir. Can you hear me? Please, we can hear you. राधे to all. मेरा क्वेश्चन ये है, जब भी मैं मेडिटेशन सुन करती हूँ तो बीच में मैं सो जाती हूँ. जब भी करने की कोशिश करती हूँ, आधा टाइम आई एम अलर्ट और आधा टाइम पता नहीं कहाँ गुम हो जाती हूँ. ऐसा क्यों होता है? कितने दिन हो गए आप ध्यान करते? मुझे सिर्फ महीना हुआ है, मैम. उससे पहले उससे पहले मैं योगा कर रही थी. योगा में वो ओम आई कंटिन्यू 15 to 20 मिनट्स, उसमें मेरा ओम में ध्यान जाता था. पर जब ये मेडिटेशन स्टार्ट किया, इसमें हाफ टाइम मैं लॉस्ट ही हो जाती हूँ. मैं कहाँ नहीं हूँ मैं. कोई बात नहीं. अगर ऐसा लॉस्ट हुआ तो भी इतना थकान महसूस नहीं होती ना आपको. जैसे जो हमारे ये सारे मास्टर्स हैं जो मुझे सबको बोल रहे होते हैं ऐसे विजुअलाइजेशन करो ऐसे, तो मैं विजुअलाइजेशन नहीं कर पाती हूँ. तो आई फील दैट कि शायद मेरे में ही कुछ है कि मैं जो वो विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रही हूँ, वो लाइट्स नहीं कर पा रही हूँ. अभी तो मुकेश जी ने बताया, हर किसी को हर कुछ नहीं दिखता नहीं. उनका आंसर दे सुनना ना. हाँ, एक को नहीं दिखा, एक को दिखा. कोई बात नहीं. इट्स नॉर्मल मैम. प्रैक्टिस करके सब कुछ हो जाएगा ना. यू आर राइट. प्रैक्टिस करके सब कुछ हो जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच. मुझे यही लग रहा था कि आई एम गोइंग ऑन राइट ट्रैक और नॉट कि हाँ मैं जब लॉस्ट हो जाती हूँ. नहीं. आप नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क यू कि हाँ कि वो लॉस्ट होना नॉर्मल है या आई एम गोइंग ऑन रॉन्ग पाथ. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू मैम. No. You are going in a right path. Okay, thank you so much, ma'am. I will ask to unmute Vibhaji. Vibhaji from Chandigarh. Vibhaji,
Please share your experience or question to ma'am, Patri ma'am. नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं विभा काम्बोज चंडीगढ़ से। मैम एक अनुभव शेयर करना चाह रही हूँ। ओके। एक दिन मैं ध्यान में बैठी तो मुझे ना 3 फिगर्स नजर आई, लाइट के रूप में फिगर्स नजर आई। तो दूर ही पत्री सर खड़े हुए दिखे थोड़ी दूरी पे। तो उन फिगर्स में से एक ने क्या अपना मेरा हाथ पकड़ा और जाके सर के हाथ में दे दिया। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा ना एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा कि ये मैं आपको शेयर करती हूँ। और दूसरा मैम, आज जो एनर्जी है ना, उसकी वजह से मेरे ये सिर का ऊपर वाला पार्ट है ना, मुझे कभी सिर दर्द नहीं होता। आज इतना बुरा हाल होया हुआ है ना सुबह से, यही सोच रही हूँ कि जब ये सेशन खत्म होगा तभी ये ठीक होगा। मुकेश जी, सबको सर दर्द दे दिए क्यों? हाँ सर, भारी कर दिए क्यों आपने म्यूजिक बजा के? अच्छा है, वो भी अच्छा है एक्सपीरियंस। कुछ ना कुछ हुआ ना। सब कुछ अच्छा है ध्यान में। जो भी एक्सपीरियंस है, सच में मुकेश जी को मैं धन्यवाद करती हूँ, इतना अच्छा मेडिटेशन करवाए सबको। जब ये मेडिटेशन खत्म, ये सेशन खत्म हो जाएगा, ये तभी ठीक होएगा मुझे लगता है। क्या खत्म होएगा? तो ठीक हो जाएगा थोड़े देर के बाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल द मास्टर्स। नीलम जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नीलम जी। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। नमस्ते मैम, मैं नीलम हैदराबाद से बोल रही हूँ। एंड अराउंड 20 days बैक मैं पत्री सर से मिलने गई थी। एक्चुअली माय हस्बैंड इज इन आर्मी एंड बिफोर दिस प्लेस वी वेर इन जोशीमठ नियर बद्रीनाथ। अच्छा। तो इनफैक्ट हैदराबाद आके भी आई एम मिसिंग दैट प्लेस सो मच कि मुझे हमेशा मतलब वहाँ की याद आते रहती है। एंड अभी एक सर ने महाअवतार बाबा जी की आवाज की बात जैसे ही की तो मेरा एकदम से मन वो होने लगता है कि आई वॉन्ट टू मीट हिम, आई वॉन्ट टू लिसन हिज वॉइस एंड ऑल दैट थिंग। तो समाउ पत्री सर से भी जब मिलने गई थी तो उनके ऑफिस में महाअवतार बाबा जी का जैसे ही मैंने फोटो देखा, पता नहीं अंदर से मुझे बहुत ही ये मतलब एक डिफरेंट सा फीलिंग आया कि आई डोंट नो व्हेन it is going to be possible and that I don't know. And my question is that जैसे मेडिटेशन के बाद कल मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, नॉर्मली होता है कि आई फील दैट कि कोई हैंगओवर है एंड इट स्टेज टिल 2-3 hours एंड मुझे लगता है कि मैं मतलब ऐसे देख तो रही हूँ चीजें होते हुए बट आई एम नॉट वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव। ओके। मतलब आई एम सीइंग कि थिंग्स आर हैपनिंग, कोई ये बोल रहे हैं लेकिन मुझे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ दैट थिंग। तो व्हाट इज दैट आई डोंट नो। और फिर मेरा हेड भी ऐसा लगता है राउंड राउंड राउंड, ओनली हेड पोर्शन व्हिच इज गोइंग। तो मतलब ये ध्यान में हुआ या बाद में भी है? ध्यान में तो हुआ ही and after that also I wanted to come back to normal but it took around 2-3 hours. Good ना? अच्छा है। हाँ, but thing is that I am doing some computer online courses also. तो अगर ध्यान के बाद तुरंत मैं पढ़ना चाहती हूँ तो तुरंत मुझसे होता नहीं है वो चीज। तो how I can मत switch करना। over? नो मत करना ऐसा। थोड़ा देर उस अवस्था में ही रहना। अच्छा। एंजॉय करो वो अवस्था को, बाद में Okay. आप कंप्यूटर जो भी है आप सीखो। ओके। हाँ, इतना अब अच्छी अवस्था है वो, रहो ना थोड़ी देर, क्या जाता है? जैसे 2-3 घंटे 2-3 घंटे में निकल जाते हैं। निकल जाता है तो क्या है, अच्छा है ना। तो अभी आप जैसे बता रहे थे ना, किसी ने पूछा पूरे दिन 24 घंटा कर सकते हैं मेडिटेशन, तो इनफैक्ट आई वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली आल्सो कि जिसमें आप पूरे दिन ध्यान कर सकते हो। मुझे लगता है कई बार ऐसे ट्राई करना चाहिए कि कैन आई डू दैट थिंग, बट of course you can do that. If you determine, you can do anything. Wonders, you can do wonders. So it is all in that willpower and yes. determination.
100%. एंड ऐसा कुछ भी होता है तो वी शुड नॉट बी स्केयर्ड कि कहीं कुछ मेडिकल ये इलनेस और ये चीज नहीं है। ये डर है ना हमको बॉडी में ही रखती है, अगर ये डर निकल गया तो हम आसमान में उड़ते हैं। ओके एंड वही मेडिटेशन में मुझे फिर ऐसा फील हुआ कि एकदम मैं हंस भी रही हूँ एंड एट द सेम टाइम आई एम क्राइंग, मतलब दोनों मिक्स इमोशंस आ रहे थे, तो आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। बिकॉज आनंद में भी रोते हैं ना। हाँ जी। इमोशंस जो हैप्पीनेस होता है, ज्यादा हैप्पीनेस होता है तो आंखों में से पानी आता ही है। हाँ तो very true. 2 in 1 no that also. Yeah very true. एंड आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मैम। उस दिन तो सर से मिले थे एंड आपकी डॉटर से ऐसे मिलते रहते हैं एंड इनफैक्ट आई फील लकी कि मतलब हैदराबाद आए तो ऑनलाइन ये मेडिटेशन आई एम एबल टू अटेंड, बिकॉज जोशीमठ में नेट की बहुत इशू होती थी, नेटवर्क कनेक्शन वगैरह नहीं रहता था, तो ऑलमोस्ट आई वाज कट ऑफ। एंड पत्री सर से बहुत मिलने की मेरी इच्छा थी, तब ऋषिकेश सर जाते हैं नवंबर में, तो मेरी फ्रेंड ने ही बताया था, मैं जाना भी चाहती थी लेकिन तब हो नहीं पाया था, लेकिन जब यहाँ आके मिली तो आई फेल्ट वेरी लकी एंड glad to meet him and today I saw you, it is very nice to meet you. Thank you ma'am. Thank you. रविंदर रोजी जी चंडीगढ़ से। रविंदर रोजी जी। रविंदर रोजी चंडीगढ़। उषा जी हैं हमारे साथ चेन्नई से। उषा जी आप पत्नी मैम से बात करना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? यस सर। प्लीज वेलकम। कैसे हो मैम? अच्छी हूँ। पहचान लिए ना मेरे को? हाँ पहचान लिए। हाँ सर मैम बहुत अच्छा लगता है रोज, और कुछ भी ध्यान करते हैं ना तो उसने यही जैसे बताया, आप लोग बोलते हो जजमेंट नहीं करना, जो हो रहा है होने देना, जैसे गंगा का पानी निकलता है ना अपनी द्वार से बहता जा रहा है, तो वैसे हमारी एनर्जी फ्लो फ्लो फ्लो, और पता नहीं इसका ठहराव कौन से सागर में जाके होता है क्या होएगा। मैं ऐसा एक्सपीरियंस करती हूँ, बस कोई जजमेंट नहीं करती, कभी ध्यान लगता है कभी नहीं लगता है, 5 मिनट लग जाता है तो कभी 1 घंटे की जगह 2 घंटा हो जाता है। ये तो अपना मन चंचल है ना, कभी स्थिर है तो कभी अस्थिर है, बस मैं ये एक्सपीरियंस करना चाह रही थी मैम। थैंक यू बहुत अच्छा है। या ठीक है राइट 100%। आप लोगों के साथ में रह के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जूम होने से हम लोगों के घरों में लेडीजों में काम के साथ में इतना चेंजेस आया है मैम, इतना व्यवहारिकता में क्या, स्पिरिचुअल में क्या, हर चीज में हर इंसान में बहुत पॉजिटिव आया है के कारण। और आप लोगों से मिलने का होता है, नहीं तो हैदराबाद आना पड़ता, कभी ऋषिकेश भागना पड़ता, पैसा भी नहीं बोलते ना, बिन पैसे का घर बैठे इतनी अच्छी एनर्जी और आप लोगों से मुलाकातें। करेक्ट, यू आर राइट। यस सर मैम, थैंक यू मैम। अभी डिजिटल का जमाना है। आपको मैंने पहले भी बताया था ना, आपका फेस मेरी मदर से बहुत 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 होता है। मेरी मदर 2003 में चले गए थे, तब मेरी आवाज चली गई थी मैम, 3.5 महीना में एकदम अपनी आवाज खो दी थी। फिर ध्यान और ओम और थोड़ा सा ट्रीटमेंट मेरे को आवाज आई, और जब मेरी आवाज आई ना मैम, तो मैं सबसे पहला वर्ड माँ बोली थी 2003 में। मतलब ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत जन बोले शेयर करना चाहिए कि माँ के बाद में मतलब ये हुआ, और उसके बाद में मेरे ओम से आवाज आई, ओम करवाए, मेडिटेशन करवाए, दिल्ली में कोई एक डॉक्टर और मेरी आवाज और एक बच्चे से हुई, और अभी पेडाल करना पर, लेकिन बहुत है नहीं तो बेहतर। तो मतलब मेडिटेशन में यहाँ पावर है कि कहीं भी कभी भी हो सकता,
Yes, yes. Thank you, ma'am. Thank you. कुलविंदर जी, थैंक यू सर। प्लीज अमृतसर अनम्यूट योरसेल्फ। चंडीगढ़ वालों को भी मैं मास्टरों को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा। थैंक यू। कुलविंदर जी चंडीगढ़, दिल्ली से। नमस्ते सबको मैडम। चंडीगढ़ लेके गए। हाँ नमस्ते। सभी और ध्यान आराम से, सबका ध्यान दियो। नमस्कार। आराम से बैठ के जूम को एंजॉय करते हैं आप। हाँ मैडम क्या करें, हर जूम में आते हो, हर जूम में आते हो। ऐसा मैडम जब इस ध्यान से इश्क हो गया, ध्यान ही इबादत बन गई, अब इसके सिवा कोई काम ही नहीं। तो दीवान तेलंगाना में आते हैं, कानपुर में आते हैं। हाँ पूरे पूरे जूम में आप छा गए। क्या, थैंक यू मैडम। ऐसा कि मैडम ध्यान ऐसा लगन लगा है कि ध्यान के बगैर, ध्यानियों के बगैर समय गुजरता नहीं। और लॉकडाउन के द्वारा इन 2 चीजें मिली हैं सर, जो सर ने हमें 3 चीजें बताई हैं, ध्यान करना, स्वाध्याय और संजय सेठी। जितना मैंने ध्यान अपने लाइफ में 9 साल में जब मैं ध्यान में आया, इतना नहीं कि इतना लॉकडाउन में किया। और इतनी किताब मैंने नहीं पढ़ी जितनी मैं लॉकडाउन के अंदर पढ़ ली। पहले मौका कम मिलता था, भाई 1 घंटा 2 घंटा बुक पढ़ लिया, तो सारा दिन टाइम होता है, तो मैं कम से कम 15 बुक पढ़ चुका हूँ लॉकडाउन के अंदर ही। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान तो काफी हो रहा है। और पत्री सर की जो भी बताई हुई बातें होती हैं या जो भी बताई हुई उनकी किताबें होती हैं, तो मेरा 100% रहता है कि मैं वो किताब अरेंज करके वो पढ़ूं जरूर। वो कोशिश मेरी जारी रहती है। और ध्यान में तो मैडम मेरा एक्सपीरियंस तो आपको पहले ही पता है। और मेरा जो लॉकडाउन के अंदर जो है, मैंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बहुत किया। और मैं ध्यान में पत्री सर की बांसुरी के साथ मेरी ऐसी गहरी दोस्ती है कि जो मैं उनके ध्यान में करीब 2-2.5 घंटे पता ही नहीं लगता मेरा 2.5 घंटे कब हो गया। गुड। मॉर्निंग मेरा एक रूटीन है, मैं सवेरे उठ के 2.5 घंटे पत्री सर के बांसुरी के साथ जुड़ रहता हूँ। चाहे मैं कोई जूम सेशन या कोई सेशन छूट जाए, मुझे कोई गम नहीं होता, लेकिन पत्री सर के बांसुरी से मैं 2.5 घंटे जुड़ बिताता हूँ। और मॉर्निंग का सेशन मेरा सबसे डिवाइन सेशन होता है, जिसमें मैं जल्दी कनेक्ट हो जाता हूँ और बहुत आनंद होता है। इतना मैंने कि आनंद होता है कि जो एक परमात्मा को मिलने के बाद जो अंदर से खुशी मिलती है कि आज मैं धन्य हो गया, तो ऐसा एक धन्य का एहसास होता है। और जूम में तो एक ऐसा ही नया एवोल्यूशन है कि जो कि इसी मास्टर के साथ एक्सपीरियंस सुनने में अपने को सीखने को मिलता है। ये नहीं कि मैं बहुत सीख गया हूँ ध्यान में आके, रोज कोई ना कोई मास्टर के एक्सपीरियंस सुनकर मुझे भी लगता है कि मैं अभी कुछ सीखना बाकी है। तो आई एम लर्नर एंड बिगिनर इन मेडिटेशन। मेरी कोशिश रहती है कि हर ध्यानी के कुछ ना कुछ उससे शिक्षा लेकर अपने जीवन में उतारूं और आगे बढ़ूं। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू। अरुणा सहगल जी फ्रॉम दिल्ली, अनम्यूट। अरुणा सहगल जी फ्रॉम दिल्ली। हेलो 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 हेलो। या सुनाई दे रहे, बोलिए। हेलो ये अरुणा जी। हेलो हेलो रविंद्र रोजी जी। नमस्कार नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं। प्रणाम, पत्री माँ को कोटि कोटि प्रणाम। पत्री माँ तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अर्पित जी, एनी डिस्टर्बेंस देयर? एक सेकंड। क्या हमको म्यूट करके रखते हो? पत्री माँ को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हो आप? आपकी दया दृष्टि है, कृपा है बहुत ज्यादा।
मेरे पास सवाल है ही नहीं। आपके दर्शन दीदार से, पत्री सर के दीदार से सवाल तो निकल गए। Good to see you here. अब तो शुक्रिया 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 रहता है हर वक्त मन के अंदर। शुक्रिया। और मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। डिस्टर्बेंस आ रहा। कोई बात नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ। आपसे हम बहुत कुछ मांगना चाहते हैं। आपने क्या? आपसे बहुत कुछ मांगना चाहते हैं आज। क्या मांगना चाहते हैं? आपने साउथ को धन्य किया है। हम चाहते हैं अभी आप बाकी का समय जो है नॉर्थ को दे दीजिए। नेक्स्ट ईयर हमारा जो प्रेम है, हमारे अंदर जो वैराग्य है, उसको हम शांत कर। आप तो साउथ को हर बार आते रहते हो। हाँ, आता हूँ। आपके दर्शन जब किए थे एक बार गंगा मैया के चरणों में, तो पत्री साहब ने तो बहुत आनंद हुआ था उस गंगा मैया से, आप भी से सारे। और अब हमारा जो अध्यात्म का जो बिगिनिंग है प्लेनेट के ऊपर, तो हमारे नॉर्थ इंडिया से हुआ है। मुनियों का धरती है सारा हमारा पंजाब। कुछ ऐसा हुआ, पत्री सर का आगमन साउथ में हुआ, तो साउथ धन्य पहले हो गया और हम महसूस कर पाते हैं इन चीजों को। अभी भी यहाँ दया धर्म दान बहुत है लोगों के अंदर, लेकिन जो प्योरिटी इन स्पिरिचुअलिटी, जो आत्मिकता की शुद्धता है, वो कहीं खो गई थी हमारी। बाबा के आगमन से इस भारत देश में ही प्योरिटी फॉर्म, प्योरेस्ट जो फॉर्म है स्पिरिचुअलिटी की, उनकी साधु संतों को भी आज के जो वर्तमान युग के हैं उनको पहचानने में मौका मिला है। कोई धर्मों के अंदर, कोई किसी कर्मों के अंदर, कोई गुरुवाद के अंदर, तो रहा तो एक भ्रम पैदा हो गया लोगों के अंदर रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी। उनके विश्वास में कमी पैदा हो गई। जो बाबा पत्री ने आनापान सती का इधर आगमन कराया उनके माध्यम से, और अनेक प्लैनेट से आए हुए मास्टर्स, उन अब हम सबको, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस जो मास्टर्स हैं, सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये अभी हमारा सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपका माइक्रोफोन निकाल दीजिए। इट इज डिस्टर्बिंग लॉट। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आपका माइक्रोफोन निकाल दीजिए। ये मैं है ना, वो निकाल दीजिए। यस यस राइट, अभी बराबर है। आप सुन पाएंगे आप? यस परफेक्ट सर, बोलिए अभी। ओके ओके, अभी कहाँ तक सुना आपने? तो नॉर्थ इंडिया में क्या है? हाँ कोई बात नहीं, आई विल कंटिन्यू फॉर फ्यू मिनट्स। आई विल टेक द, आई विल फील ब्लेस्ड। ठीक, तो क्योंकि मदर पत्री हैं, तो हमारे आपके ब्लेसिंग के लिए मैं पहले तो आपका वेलकम करता हूं सभी पंजाबियों की तरफ से, हमारे नॉर्थ इंडियन की तरफ से, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से। और पत्री माँ ऐसा है, जो पत्री बाबा ने आनापान सती के माध्यम से भारतवासियों को जो प्योरिटी का एहसास करवाया, अनुभव करवाया, प्रैक्टिकली अनुभव करवाया, पूरे विश्व को अनुभव करवाया, और वो बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है। और जो हमारी जो वाइब्रेशंस है, हमारा जो आनंद है, हम उस आनंद को हर वक्त महसूस करते हैं। और हम और आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी जो ब्लेसिंग्स है, उससे हम और आनंदित होकर हम बहुत जल्दी इस काम को अंजाम देना चाहते हैं। इस काम को हर रूह तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो आनंद को हर रूह, जो हम आनंद हर वक्त महसूस करते हैं, वो सारे के सारे जो हमारे सोलमेट्स हैं, मैं तो हर जीव हर प्राणी को सोलमेट मानता हूँ।
वो आनंद पत्री बाबा का जो आशीर्वाद है हर जगह पहुंच जाए, आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं हर आत्मा के पास पहुंच जाए। तो इतना कहता हुआ मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आस्क योर क्वेश्चन। मुझे बोलना है कि प्यार में और ध्यान में आगे कैसे बढ़े। सालों से सुनते आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर एक एक व्यक्ति से प्यार करना, दिल से प्यार करना, दिखावे के लिए नहीं, और ध्यान में गहरा उतरना, ये मेरे को अंदर से बहुत खींच हो रही है कि कैसे आगे बढ़ूं, कैसे आगे निकलूं इस चीज में, प्लीज। और मैंने ये पहली बार आप अटेंड जब किया है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हर बार आप जूम में ऐसा कनेक्ट कीजिए अपने आप को। जब ध्यान में आगे बढ़ेंगे तब प्यार में आगे बढ़ेंगे। यस, ध्यान में बैठते हैं रात में, सुबह में, और अभी ये जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं रात में 9-10 बजे का और 11 बजे का, तो उसमें मुझे 1 वीक हो गया है। अच्छा, तो उनके साथ बैठ रही हूँ। हाँ जी, तो लेकिन अंदर से बहुत खिंचा हो रहा है कि लोगों के इतने एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो उसमें मन कर, मतलब अंदर से वो आवाज आती है कि हमें भी उस जगह, वहां पे जाना है। तो इसके लिए आज अपने आप आपके आगे में बोल पड़ी। अच्छा, अच्छा है ना। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो हमेशा होगा। हमारा क्या ज्ञान में जो भी बैठे हर गुरु आगे आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। हमको बैठना ही चाहिए बस। और ध्यान में बैठने से सब गुरु हमारे पास आ जाएंगे, खींचे हुए, क्योंकि है ऐसा शक्ति ध्यान में। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। मैं जाऊं क्या अभी? नहीं, आप अभी कुछ शब्द कहे, हमें मोटिवेट करें मैम। आप बहुत दिनों बाद मिले हैं आपको, और आपसे हम चाहते हैं कि आप हमें मोटिवेट करें और इसमें हम आगे कैसे बढ़े। कुछ शब्द कहें हमें, पिरामिड मास्टर जो चंडीगढ़ के हैं, नॉर्थ इंडिया के हैं, उनके लिए आपका मैसेज हमारे लिए बहुत मायने रखता है मैम। आप अच्छा ध्यान कर रहे हैं, सब लोग अच्छा ध्यान कर रहे हैं। सबसे प्यार करना सीखो, सबसे सीखना सीखो, बस पहले और कुछ नहीं। क्योंकि हर मनुष्य में कुछ ना कुछ खूबी होती है। वो खूबी को पहचानो बस, और कुछ नहीं। क्योंकि हर एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। We have to see the special things in every being, then you adopt them and learn how to be like that. बस और कुछ नहीं। हर जीव को प्यार से देखना सीखो और प्रकृति के साथ रहना सीखो। नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल, so be with it. It's really wonderful. So ऐसा है। पत्री मैम, हर व्यक्ति के पीछे, हर एक आदमी के पीछे एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है, एक लक्ष्मी की बहुत कृपा होती है। तो हम वो चीज जानना चाहते हैं, बिकॉज देखिए आज हमें ये इतनी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। सो वी वांट टू लर्न कि जैसे पत्री जी ने ये अध्यात्म का मार्ग चुना, तो आप उनके कंधे से कंधे साथ खड़े थे। तो वो जो एक रास्ता आगे बढ़ा और कारवां बढ़ता चला गया, वी वांट समथिंग टू हियर अबाउट दैट मैम। दैट विल बी रियली मेमोरीज फॉर अस। वो तो स्टार्ट किया, ये जो भी है ये मतलब अंदर जाने की जो हमारा
मतलब ज्ञान है वो खोता जा रहा है। अभी ये ध्यान सिखा रहे हैं सबको, पहले से मतलब 79 से उन्होंने इसमें जुड़ गए हैं, लेकिन पहले मैं नहीं थी, ये ध्यान में नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैंने उसको अपोज भी नहीं किया, मतलब तुम मत करो बोल के कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके साथ थी लेकिन वो उनके साथ नहीं थी सेम टाइम। तो मैंने जब शुरू किया 85 में शुरू किया 1985, जब से मैंने आनंद ही आनंद मैंने महसूस किया। द डे वन से मैंने ध्यान में जब बैठी हूँ तब से डे वन से आई वॉज मेडिटेटिंग फॉर 8 hours 9 hours लाइक दैट। मेरा एम था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ जानना है, ऐसा करके मैंने ध्यान शुरू किया। ऐसा कि नहीं क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सब उन दिनों में अगर प्रश्न पूछे तो भी जवाब देने वाला कोई नहीं था। अभी तो जवाब देने वाले हजारों हैं, लेकिन उन दिनों में कुछ नहीं, जो भी किताबें में होता है वही हमारा जवाब होता है। मतलब ऐसा होता है, हिमालयन मास्टर्स होते हैं, रोशो रजनीश का पढ़ते थे, ऐसा पढ़ के हमने जान गए कि क्या हुआ, क्या है उधर, उस तरफ क्या है। इसीलिए ऐसा पढ़ के हमने जो भी हमारा एक्सपीरियंस आ था, ओके मे बी इट इज करेक्ट, मे बी इट इज करेक्ट, ऐसा करके मैंने जब शुरू किया तब ने हीलिंग करना सीखा। जीसस क्राइस्ट हमारे सामने आए थे ध्यान में, तो उन्हें जैसे कि एनर्जीज कैसे ट्रांसफर करना, हम में जैसे क्या क्वालिटीज रहना चाहिए, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है तुम ले सकते हो क्या, ये सब प्रश्न हमको पूछते थे। वो मैंने हाँ, क्योंकि नया नयापन था, मुझे पता नहीं था क्या क्या आदमी को हील कर सकता है विदाउट मेडिसिन, पता नहीं था, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। तो ऐसे ही हील करना शुरू किया, जो भी प्रॉब्लम सुन के थे मैंने लेना शुरू किया। मैंने वो पेन पूरा मैं महसूस करती थी, 1 हफ्ता 10 दिन, एक बार महीना भी होता था। ऐसा करके धीरे धीरे मैंने हीलिंग छोड़ दिया, ध्यान में आगे बढ़ गई, गीता में पढ़ना, उनके साथ रहना, सब लोगों को खाना खिलाना। एक दिन को 50 लोग 20 लोग 100 लोग ऐसा आते थे, सबको खाना खिलाने से छोड़ते नहीं थे सबको। you have to feed them, you have to make them happy, then only you will see we used to send them out। जो भी है, एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर में करंट का बिल आया था, मतलब पैसे नहीं थे, पे नहीं किया, तो फ्यूज निकालने आ गए, 2 लोग आए थे, तो वो लोगों का आए, खाना खिलाए, ध्यान में बिठाए, ध्यान के किताबें इतने किताबें दे दिए उनको, और उन जाते जाते मैडम हमने आए थे आपका फ्यूज उड़ाने, लेकिन हमारा फ्यूज उड़ गया इधर, ऐसा करके उन्हें बोले, तो बाद में हम आएंगे, आप प्लीज पे करना, कल तक हमारा टाइम है, नहीं तो हमारा जॉब चले जाएगा। मतलब मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ कि हर किसी को उन्हें ध्यान सिखाने से नहीं छोड़ते। एक एक आदमी के लिए उन्हें 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर केवल बस में हैंग होके जाते थे, खड़ा होके जाते थे, क्योंकि ध्यान सिखाना है। वहां पर वो आदमी है कि नहीं उनको पता नहीं। कई बार ऐसा होता था कि वो उधर गए तो वो आदमी रहता ही नहीं, ताला रहता था दरवाजे में, तो वहीं बैठ के थोड़े बाद देर बाद वापस आते थे। ऐसा कई बार ऐसा हुआ, ऐसा एक करके जुड़ते गए, तो अभी देखो इतना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम।